Good morning, good afternoon, good evening. Whatever time of the day you are watching this video. Hi, my name is Digant Purani. I welcome you on our YouTube channel. So what are we going to talk about today? How to ace the personal interview. With about 8.5 years of corporate work experience, I can very well tell you that I have been on both sides of the table, where I have been a candidate or an interviewee as well, and I have been an interviewer as well. So in today's video, I am going to take you briefly through the aspects and nuances of a personal interview. But even before I go there, I really want to share the usual selection process. Written test. So again, exams like CAT, XAT, NMAT, SNAP, most of the exams are already over. With IAFT just round about the corner, the last window, I will say, of NMAT is also just round about the corner. I am sure the major concern that you guys would be having is everything after point number 1. That is CV shortlisting or a resume building. So also I can tell you that I am going to have a separate video which is completely about how to build an effective resume. Third point is group discussion, case discussion or what. Now one thing that I really want to share with you is quite a good number of colleges might do away with this particular round. Group activity, thanks to pandemic, right? They may not call you at their premises, but it might happen online. My entire focus in this particular video is going to be about personal interview. In this particular video, I am going to take you through the entire PI. What are the types of personal interviews? What are the phases of personal interviews? What are some of the questions? And in a nutshell, how should you answer? Also, what we plan to do is create separate videos. So we plan to have a very small snippet videos about your strengths and weaknesses. So one separate video on strength and weakness, one separate video on your introduction, one separate video on your hobbies, and one separate video on some of the questions that were asked last year in the personal interview. So I would strongly recommend you to mention in the comment section that what are the next important videos that you would like to see on priority. This is generally a usual process. Now what I have done is I have divided the entire PI into 4 categories. What are these 4 categories? Informational phase, informational section, technical section or a technical phase, semi-technical section or a semi-technical phase, and an HR section. What I want to tell you is that for a B school, it doesn't happen that okay, now you're round 1 which is informational, round 2 which is technical, round 3 semi-technical, round 4 HR. It doesn't happen for a B school. Similar things happen when you go for placements or you go for lateral placement after you start working and you want to do a switch where your first round is technical, next is non-technical, then HR and blah 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 blah. But in a B school, all these will happen together. So you enter a particular room if it's a physical interview, or you start your interview online and the questions will be bombarded, or you will be bombarded with the questions all together. So it might happen that a couple of questions of informational area are asked to you, then 1 or 2 from technical, then an HR, then again a technical. That will keep on shuffling. But by and large, you can very well categorize. So this particular categorization is going to help you how to prepare. That okay, you are sorted with informational sections, fine. Technical, okay. Semi-technical and HR. So if you consider all these 4 categories and you check them out, that okay, I am prepared for all this, then it's an absolutely wonderful thing that you will be doing to yourself. One more thing that I would strongly recommend is write your answers. Do not go into a personal interview without having written. So practice is really very important. I'm going to talk about that pretty much in detail in this particular video as well. Let's take these areas one by one. Informational. The most common question is introduction. So they will ask you, introduce yourself, or they will ask you, tell us something about yourself, or they might even ask you, tell us something about yourself which is not part of the resume. In that case, what I really want you to do is prepare your separate introductions. Your one introduction should be about 2 minutes, 2.5 minutes. You should also prepare another introduction which is just about 1 minute, because they might even ask you introduce yourself in less than 1 minute. That's a possibility. So you should be ready with 2 answers. And third question or the third introduction that you really need to prepare is everything that you want to talk about yourself which is not part of the resume. Be prepared, write these answers. I would have a very separate video on introduction where I'm going to talk very much in detail about what you should do. Next I'm going to talk about is strengths and weaknesses. Strengths is everything that is positive, weakness is everything that is negative. Sir, I don't think I have weaknesses. Then I am afraid that either you are absolutely unaware of yourself or you are unnecessarily flaunting yourself, which either of the two won't work in a nicer way for you. Everybody has some strengths, everybody has some weaknesses. So what you're supposed to do is talk to your parents, talk to your mentors,
Talk to your friends who generally help you constructively to know yourself in a better way. Talk to your siblings. Sir, can I package my weaknesses such that it appears to be strength? My answer is absolutely no. For example, many students I have heard when I have taken interviews, what are your weaknesses? Sir, I'm over dedicated. Why? What is wrong with being over dedicated? Sir, what happens is if I'm over dedicated, then some people say that I miss deadlines because of over dedication, because of too much into it, I miss the deadline. Some people say that, sir, when I am over dedicated, I expect others also to be that much dedicated, and when they do not work that way, I get a little bit angry, I lose my mind, and then eventually things go wrong. Some people say that, sir, I am so very much dedicated that if I see a substandard work, it irritates me, and then I eventually do it myself. All the three cases or any other similar case, the real problem is not over dedication. The real problem in the first case where you miss the deadline is time management. In the second case is anger management, where you get angry on somebody. In the third case, or also in the second and third case, both, it's the problem of delegation. You are not able to delegate the task to right people. If you know that so and so person is going to take a lot of time or is not going to do properly, then you probably delegate it to somebody else or give the task that that person can do. Right? Again, taking back to the very first point, that if you miss the deadline, if you know that you are somebody who is very much dedicated or very much to the details and goes very much into the subject, if somebody is going to take 5 hours, you will take 7 hours, then plan your day accordingly. Start work early. That is the problem. So all I really want to tell you is that don't try to fool the interviewer by saying that let me package a particular weakness such that it appears to be strength. Gone are the days where people used to do that and the interviewer used to get impressed because of that, right? If it's a weakness, it has to be a weakness. What can be your weakness? Again, not proper planning of time or not proper management of work, delegation of tasks can be a couple of problems. Another interesting problem could be being verbose. Now again, for that you really need to be verbose. Then you can say that you are verbose. You might be asked that how is verbose a weakness? Then you can always justify, let's say, or if I have to justify verbose being my own weakness, is that when I start talking, I talk a lot, and then eventually I lose the interest of the person. That is something that I don't want, and that is exactly what I consider to be weakness. My direct guidance to you or my direct note to you would be, whatever your strengths and weaknesses are, make sure you justify with the examples. You just can't say out of the blue that this is my strength and this is my weakness. You got to justify it with the experiences that you have had abhi tak in your life. And as far as weakness part is concerned, how do you overcome that? What are your plans to overcome that? Also with weaknesses, try to identify what all problems you have faced, right? Anger management ki wajah se you probably shouted on the boss in a conference room and then you were badly reprimanded. Yes, that is a problem, right? Also, there is a very thin line where I would strongly recommend you to not be very much honest. And yes, I absolutely advocate being honest. But just an example, there was a student. He told me, "Sir, I have an anger problem." Why? What is it? Sir, just couple of days back, I hit somebody with a stone. Now that's a grave problem, right? Thankfully, the person did not get hurt a lot and did not file a police complaint. Otherwise, this becomes a legal issue, and that should have happened, right? So, if you are somebody who has done that, then I will say give other examples where they are a little bit toned, right? Where थोड़ा subtly आपने anger का problem दिखा दिया है, ठीक है? Or let's say if something like that happened, but that had happened 5 years ago, 10 years ago, 7-8 years ago, and since then you have really worked on your anger and now you still get angry. So ऐसा नहीं है कि सर ये 5 साल पुरानी weakness है, ये present weakness है, पर हाँ इस पे मैंने काफी काम किया हुआ है. So try to identify your strengths, try to identify your weaknesses, write it down with examples, show it to people around you, and then I will say you are absolutely prepared about that particular part. Next question that I really want you to prepare on. So again, the agenda of today's video is the questions that you should be absolutely thorough with. You should be prepared for that, right? Again, not many personal interviews are going to happen in next 1 week. So for the next 1 week, what I would strongly recommend is do maximum amount of introspection. Yes, you would be having a couple of written exams as well, but then you got to plan your day accordingly. You should do maximum amount of introspection so that you are absolutely prepared for this interview or for this interview questions. You do not want to fumble in front of panel, or you do not want to sit and think there, okay, what are your strengths? Okay, these are my strengths. What are weaknesses? No, I don't have any weakness, right? I am a very perfect person.
No, that sounds stupid. Don't do that. Coming to why you should be selected is also a question for which the answer that you are supposed to give is your strengths. ठीक है. So यहाँ पे मैं आपको ये भी आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे एक क्वेश्चन को बदल करके क्वेश्चन की पैकेजिंग बदल के आपके सामने रखा जाता है, जहां पे आपको एग्जैक्टली वही आंसर देना चाहिए जो आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है. Another way to ask the same question is, do you have friends? Yes. What do they tell about you? If I meet your friends, what will they tell about you? Right? So यहाँ पे मतलब you have to talk about your strengths. You can't say, okay, friends की बात है ना सर, तो अपन यारों के यार है. मतलब obviously you are not going to use that language in an interview, but you will say, I am a 3 AM friend. I do not want you to do that, right? ठीक है. Let's make sure that the strengths that you are talking about are relevant to the interview that you are setting for. So if you are setting for a B school, for a management, for an MBA interview, your strengths and weaknesses should be to some extent relevant, right? You may be an amazing cricketer, that's your strength. Doesn't mean that you will talk about that in the interview. You can, however, always talk about how good of a team player you are, or how good of a captain, or how good of a team leader you were, right? Yes, but then provided, yes, you were a captain, or you are able to justify with lots of examples. Next question that I really want you to work on is hobbies, right? Sir, I do not have any hobbies. Ideally, you should, right? Because it's very simple. You don't want to be that person who is always occupied with work. You would be doing something in a leisure time that will de-stress you, that will rejuvenate you when you are getting back to work. What sort of hobbies can be? Again, it can be anything. Point number 1, if you are talking about the most common hobby, that is reading, make sure you have read decent number of books. Make sure at least you are able to talk about 10 to 15 books given a chance. अगर आप given a chance 10 से 15 किताब के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बात कर सकते हो, तो ही रीडिंग में हॉबी बताना. अगर आप बिना कुछ ज्यादा जोर लगाए, अगर आप 5 से 10 ऑथर का नाम लेके, उनकी राइटिंग स्किल से लेके, उनकी बेस्ट बुक्स से लेके इतना बात कर सकते हो, इफ यू आर एबल टू टॉक अबाउट 5 to 10 authors, if you are able to talk about 10 to 15 books, if you are able to talk about your favorite book, if you are able to talk about a book which you have read and something that you liked about it, something that you did not like about it. So यहाँ पे with every question you have to understand there are always going to be counter questions or follow up questions. You really just don't have to prepare for a particular question. You have to also prepare for the follow up questions. अगर आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी स्पोर्ट हो, प्लीज मेक श्योर दैट आपको उस स्पोर्ट के इंडियन प्लेयर्स 5 से 10 पता हो और ग्लोबल 5 से 10 प्लेयरों का नाम पता हो एटलीस्ट. ठीक है. अगेन जितना ज्यादा पता हो उतना अच्छा ही है, बट हाँ पता होना चाहिए. सी ट्रिक क्वेश्चन हो जाता है इसमें. मतलब लेट्स से अगर आप बोलते हो कि स्विमिंग इज माय हॉबी एंड देन आई विल आस्क यू हु इज द फोर्थ रैंकर इन स्विमिंग. अब 1 2 3 जनरली प्रिपेयर करके जाते हैं लोग. 4th पूछा जाएगा नहीं पता. अब पूछने वाला शायद 5 6 7 भी पूछ सकता है. सो बेटर जस्ट टू बी सेफ, राइट, नो अबाउट दीज थिंग्स. मतलब स्विमिंग के बारे में कैंडिडेट ने कितने स्ट्रोक्स होते हैं, कितने मीटर्स के लैप होते हैं, क्या क्या होता है, ओलंपिक्स में क्या होता है, ये तो पढ़ के आया ही होता है. बट एक्स्ट्रा सरकमवेंटिंग चीजें भी पढ़ना जरूरी है आपकी हॉबी के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट इज योर पास्ट. अगेन बी प्रिपेयर्ड अबाउट योर पास्ट, वट एवर योर, बाय पास्ट आई मीन योर academic past or your professional past, not personal past. Okay, so you can talk about your 10th standard, prepare about your 12th standard, not academic subjects. But what I really want to tell you is कि अगर 10th standard में आपके कम आए थे, 12th standard में आपके कम आए थे, तो शायद काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हो गया था, क्यों कम आए थे. Okay, what could be an answer? Be given honest answer. So let's say you were not serious in 10th standard. Fine, fair enough. There is nothing wrong in accepting it. You probably were not well, or you probably were going through a bad phase. You probably were in depression. Whatever it is, just make sure that you accept that and see how you worked on it. Right? So be prepared for that particular part in the informational phase. Role model. Is it important to have a role model? I will say it is good to have. ठीक है? Because a role model always helps you to motivate you, or to be able to think when you are stuck up at a crossroads. You will think that okay, how will my role model think, and then how will I think. So again, these are some of the questions. Compulsory नहीं है कि यही आएगा, but अगर ये आते हैं तो आपको पता होना चाहिए what is it that you are supposed to answer. Again, I'm telling you, we plan to roll out separate videos on most of these topics as well. But today, so that your preparation kickstarts, you should be aware कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए.
टेक्निकल की अगर बात करूं तो वर्केक्स के बारे में आपको इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए. वॉट एवर आपका काम है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, आप चाहे टेक्निकल में हो चाहे नॉन टेक्निकल में, आपको बिजनेस डोमेन के बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट. सो इफ आई गिव यू माय ओन एग्जांपल, व्हेन आई वाज वर्किंग विद TCS, I was working on the software, but I made sure that I know entirely what the business is. So मेरे सॉफ्टवेयर का मेरे क्लाइंट जनरल इलेक्ट्रिक को कहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला था, उनके एसेट मैनेजमेंट डिवीजन में वो कैसे हेल्प करेगा, वो सब मुझे पता होना चाहिए, ठीक है. वॉट एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर वर्क एक्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फॉलो अप बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा इंट्रोडक्शन में मेरी बात करता था कि I am a Six Sigma Black Belt certified. So again, in that what I will make sure कि even when I talk about WorkX, I will bring that process improvement वाला angle, right? Because if I am a Six Sigma Black Belt and if I do not use it in my own project, what's the point, right? So that is something that you really need to think. Next is your graduation subjects. So this is a very interesting question. What is your favorite graduation subject? Be it engineering, non-engineering, commerce, whatever background you are from, BBA, medicine, pharmacy. Please make sure or please believe that they would know about that particular subject. So, and again, they are also kind enough. They will not ask you any random question. They may ask you though, but most of the times they will not ask you any random question from your graduation. They will ask you which is your favorite subject. So what you are supposed to do is pick up 2 to 3 subjects from your graduation, revise it, right? You have time. ठीक है, लॉट ऑफ टाइम यहाँ से लेके आपके इंटरव्यू तक, रिवाइज 1 or 2 सब्जेक्ट्स इन एंड आउट काफी डिटेल में, सो दैट इफ आस्क्ड यू शुड नो. मतलब आई हैव बीन एज अ पैनल एंड बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे सामने कोई कॉमर्स स्टूडेंट बैठे हुए, मैं उनको पूछता हूँ टेल मी 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जैसे सर हाँ थोड़ा 11th में पढ़ा था तो अभी एकदम डिटेल में याद नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड 11th में पढ़ा था, बट एक कॉमर्स स्टूडेंट को 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे ना याद हो, पता चल रहा है. सो यस, questions are asked about your academics even though you are going for a master's का degree. Your projects and trainings, please know in and out about it. You never know the project that which you had worked on and the person knows a lot about it, ठीक है. So वो technicalities में भी घुस सकते हैं. You should go back, go through your projects. अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं मार्केट रिसर्च है या ऐसा कुछ है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो नल हाइपोथेसिस वाला पार्ट कर लो. आपने कैसे रिसर्च किया था, सैंपल साइज क्या थी, प्राइमरी था, सेकेंडरी था, एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, मेक श्योर यू आर एब्सोल्युटली अवेयर. सी, इट गिव्स यू 2 advantages. One, when you talk about that particular project, it very well gives a very great impression कि यार the person has really slogged a lot about it. 2, when they ask you a question, you answer. They ask, you answer. सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब. और इसमें होता क्या है, काफी सारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं. In an interview where you talk more, I think it's a good interview according to me. That's what common sense says, right? So 15-20 मिनट तक एक इंटरव्यू चल रहा है, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30, 45 depends, right? But by and large you be prepared for a 15 to 45 to 1 hour तक का, maximum 1 hour तक का इंटरव्यू. In that case, if you talk, right, if you give answers to the questions that are thrown at you, that is what you're supposed to do. So rather than not being able to answer such questions which are from your domain, be prepared for general awareness questions. जो मुझे नहीं पता क्या कितने कंफर्टेबली आप आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या टॉपिक लेके आते हैं, तो बेटर वही है ना कि जो अपना डोमेन है जहां पे आप शेयर हो उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर करके जाते हो तो आप बढ़िया तरीके से आंसर कर पाओगे. सेमी टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या चीजें होती है, तो अगेन वॉट एवर एक्स्ट्रा कोर्सेज दैट यू हैव डन, मार्केटिंग हो चाहे फाइनेंस हो चाहे HR हो चाहे ऑपरेशंस हो, ठीक है, अगेन प्रिपेयर अ लॉट अबाउट इट. ठीक है, जेनरिक करंट अफेयर्स, मतलब दिस इज जेनरिक करंट अफेयर्स, लाइक आई सेड ग्रुप डिस्कशन में क्योंकि यूज होता है तो दिस कैन बी पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ PI एज वेल. थर्ड पॉइंट इज वेरी रेलेवेंट करंट अफेयर्स. बाय रेलेवेंट करंट अफेयर्स व्हाट डू आई मीन? सो लेट्स से आई एम वर्किंग इन टेक्निकल साइड ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, then I need to know, मतलब let's say if my company is providing a software for a stock exchange, right, I'm giving an example, then you should know about stock exchange because be prepared, stock exchange becomes a keyword और वहां से उन्होंने पिक किया और आपको पूछ लिया. You should be aware of everything that is happening in your technology, one, in your company if you have WorkX, in your company's industry. So let's say if your company is pharmacy company, तो आपको फार्मा वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए. अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर से आते हो, सो आजकल ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्या चल रहा है, किसने किसको टेक ओवर कर लिया, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट.
If you are coming from IT domain or manufacturing domain, so you should know about the recent happenings in that particular. If you are coming from a company like Infosys, and they might ask you what is Infosys का share price. They might ask you उनका revenue कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है कंपनी का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, कुछ तो डेटा लेके जाओ. मान लेते हैं मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पूछा, नहीं पता, पर मैं ऐसा बोल देता हूँ, आई एम नॉट श्योर ऑफ द क्वार्टर रेवेन्यू बट आई कैन गिव यू एनुअल रेवेन्यू. व्हाट आई हैड रेड वाज दिस. सो एटलीस्ट अगर क्वार्टर नहीं है तो एनुअल तो आपने बता दिया. रीड अबाउट योर कंपनीज फाइनेंशियल्स. इफ यू डू नॉट कम फ्रॉम अ बिग कंपनी, इफ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी, ट्राई टू टॉक टू योर मैनेजर्स, ट्राई टू टॉक टू योर सुपीरियर्स, और एटलीस्ट थोड़ा समझ लो कि उनका मार्केट क्या है, उनके कस्टमर्स कैसे होते हैं, उनका कंपिटिटर्स कौन होता है. ये सारी चीजें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए. Again, if you're coming from big companies, be aware of your competitors, be aware of your substitutes. मतलब कल को कौन आपको रिप्लेस कर सकता है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. So by that, every news related to your organization, your company, you should be aware of. अच्छा, not just that much. Let's say if you come from a particular city, ठीक है, like a Bhopal, or if you come from Gaya, if you come from down south Chennai, if you come from Mumbai, Delhi, so थोड़ा बहुत वहाँ का करंट अफेयर्स आपको आइडिया होना चाहिए. If you come from गुजरात, अहमदाबाद, तो वहाँ क्या चल रहा है आजकल, क्या करंट अफेयर्स है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या सोशल सिनेरियो है, सब आपको आइडिया होना चाहिए. राइट, एब्सोल्युटली. अगेन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर रेलेवेंट करंट अफेयर्स बिकॉज दैट इज योर बैकग्राउंड. यू शुड बी ऑल्सो अवेयर ऑफ एनी न्यूज दैट इज रिलेटेड टू योर ग्रेजुएशन. ठीक है, मतलब इफ यू आर अ फ्रेशर, सो आपके ग्रेजुएशन में अगर कुछ न्यूज आई है, कुछ चल रहा है, तो आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, पता होना चाहिए. ठीक है. अगेन केस डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, काउंटर क्वेश्चनिंग के लिए अभी आपको ये सारी चीजों में प्रिपेयर होना चाहिए. राइट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स. अगेन ऑल दीज विल फॉल अंडर सेमी टेक्निकल एरिया. लास्ट इज योर HR. सो HR एरिया में क्या होता है बेसिकली, वेरी सिंपल. व्हाई दिस कॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, प्लीज गो टू रेलेवेंट सोर्सेज. राइट, इंटरनेट पे भी अगर जाते हो तो गो टू दैट कॉलेज वेबसाइट. ठीक है. अच्छा, इफ यू नो समबडी हु इज फ्रॉम दैट particular college, ask them what are the positives about that particular college. What I really want to tell you is that whenever you talk about why this college, ठीक है, don't talk bad about other colleges, talk good about that college. Right, so generally ऐसा कोई करता नहीं है, but let's say if you are asked a college comparison, right, if I have to say, if you are asked about college X जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो versus college Y, जब college Y बहुत बेटर है और मेरे को अगर पूछते कि ये दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो मैं बोल दूंगा क्योंकि वाई बहुत बेटर है ना, तो मैं बोलूंगा आई विल गो फॉर कॉलेज वाई. मैं यहाँ पे उल्लू नहीं बनाऊंगा. जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर मुझे पूछा NM वर्सेस IIM अहमदाबाद, वैसे नहीं पूछते. ठीक है, नहीं पूछते. डोंट वरी अबाउट इट. बट अगर इनकेस पूछ लिया तो मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट बी फूलिश इनफ कि आप NM में बोलोगे कि NM बढ़िया है. नहीं, अगर आप NM वर्सेस IIM अहमदाबाद की कंपेरिजन कर रहे हो और आप फिर NM बोलते हो, तो आप ये बता रहे हो कि भाई मैं तो तेरे को उल्लू बना रहा हूँ, और ये कभी भी नहीं करने का. ठीक है. हालांकि ऐसे नहीं होता. जनरली यू माइट बी आस्क्ड कि व्हाट आर योर अदर कॉल्स, तो बी स्मार्ट इनफ टू आंसर व्हाट आर योर अदर कॉल्स में शायद आप वही कॉलेजेस का नाम लेना चाहिए आपको जो उस कॉलेज के या तो बहुत बेटर है या बहुत नीचे है. सेम लेवल में मत करना, क्योंकि फिर आप वो कंपैरिजन में फंस जाओगे. अगर आपने कंपैरिजन की है, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट एन SIBM पुणे वर्सेस NMIMS, आप दो में से कोई भी एक इंटरव्यू में बैठे हो और आप रिसर्च करके बैठे हो, तो आप बोल सकते हो. कभी भी आप यही बोलना, आप जिस किसी कॉलेज में जाते हो आप उस कॉलेज के बारे में अच्छी बातें करना. दैट इज व्हाट आई विल टेल यू. नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव थिंग अबाउट एनी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कंट्री, सिटी, पीपल. ठीक है, मतलब लोगों के बारे में भी नेगेटिव चीजें मत बोलना. ठीक है, ये हम डायरेक्टली नहीं करते, पर ये हम कभी कभी इनडायरेक्टली कर देते हैं. जब वो वाई यू आता है, हाँ, तो वाई डू यू थिंक यू वुड बी सिलेक्टेड. तो मेरे को ऐसा स्टूडेंट्स ने आंसर दिया हुआ है कि सर आई हैव डन so and so degree, then I have done so and so courses, and I have also done a couple of internships. Sir, I think I am much better than other candidates. लास्ट सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए था. ठीक है, हाँ, खुद की अच्छी बात करो ना, क्या प्रॉब्लम है. बट देन वो पर्सन थोड़ा टेस्ट में था, उसने वहां पे मेरे को ऐसा बोलना चाहा कि सर आपको ऐसा कैंडिडेट कहाँ मिलेगा. बॉस, मैं 2 दिन से 50 इंटरव्यू ले रहा हूँ और तेरे से मेरे को कम से कम 15 कैंडिडेट बेटर मिले हैं. ठीक है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ एक भी कैंडिडेट बेटर मिल गया ना तो आप वैसे भी चेकमेट हो जाते हो, और नहीं भी मिला ना तो भी ये एरोगेंस हो जाता है नहीं दिखाने का. ठीक है, यू टॉक गुड थिंग्स अबाउट यू, कि आप क्या वैल्यू एड करोगे, आप उसके बारे में बात करो. वाई MBA की अगर बात करो तो यस, यू शुड नो व्हाट आर योर करियर गोल्स एंड कनेक्ट इट विद वाई MBA. ठीक है, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, नाउ दिस इज नॉट फॉर यू गाइस,
बट दिस इज द क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू इन द एंड। शायद आखिरी क्वेश्चन होता है कि एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अस, तो सर क्या करने का, पूछने का कि नहीं पूछने का, ठीक है। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओके, सर आपके यहाँ पे HUL आती है, सर आपके यहाँ पे 6 सिग्मा पढ़ाया जाता है, मैं बोलता हूँ नहीं पूछने का ये सब। सी ये सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे या उनके कॉलेज के वेबसाइट पे अवेलेबल था ना, सो आपको पता हो जाना चाहिए था। जब आप ऐसे सवाल करते हो तो वेरी सिंपल 2 चीजें आप सीधा सीधा उनको प्लेट में सजा के देते हो कि एक, आपकी रिसर्च कम है, दूसरा आप तो प्लेसमेंट के लिए ही आ रहे हो, HUL का क्यों ही पूछ लिया आपने, हाँ उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में है तो है, नहीं है नहीं है। आपको अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपने रिसर्च करने के बावजूद भी आपको नहीं मिला, वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। या तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेलिंग देम दैट नो सर आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क। चलिए अगर मैं टेक्निकल पॉइंट पे जाता हूं तो जो लोगों के पास वर्कएक्स है वो बहुत ध्यान से रखे, ब्रिंग ऑल द नंबर्स दैट यू कैन, बिजनेस स्पेसिफिक, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट, एवरीथिंग, ठीक है, सारे नंबर जितने ला सकते हो रिगार्डिंग योर कंपनी, रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग योर बिजनेस यूनिट, रिगार्डिंग योर अकाउंट, ब्रिंग देम। आप कितना बिजनेस समझते हो ना, वो वहां पे जानना चाहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बिजनेस इंपैक्ट ऑफ योर कंपनी, अदरवाइज यू आर जस्ट अनदर टेक्निकल गाय हु केम, हु वर्कड व्हाटएवर दे वर टोल्ड एंड हु लेफ्ट। सो इसमें वो MBA वाली बात नहीं आती। सो ब्रिंग नंबर्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। योर बिगेस्ट फेलियर एट वर्क, आई रियली वांट यू टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। नाउ योर बिगेस्ट फेलियर एट वर्क कुड बी समथिंग लाइक एक आधा प्रोजेक्ट था जहां पे आपने थोड़ा मेसअप कर दिया और गड़बड़ हो गई, क्लाइंट चिल्लाया, एस्केलेट हो गया, आपने गाली वाली खाई, बिंदास बोलो उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद ये जरूर बताना कि आपने क्या लर्निंग्स की। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं नया था मेरे कंपनी में, मैंने ऐसा मेसअप कर दिया, क्लाइंट चिल्लाया, बहुत भड़क गया, ठीक है, मैंने गाली वाली खाई। अगले दिन जब माहौल ठंडा हो गया, मैं सीधा मेरे मैनेजर के पास गया कि ये गलती क्यों हुई, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और मुझे समझ में आया कि एक्चुअली कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी अपने सारे प्रोसेस में, ये एक प्रोसेस को छोड़ के। तो ये मेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का डॉक्यूमेंट है, आप इसको रिव्यू कर देंगे। नाउ दिस इज एक्जैक्टली लाइक एन MBA वर्क्स। चलो प्रॉब्लम हो गया, हमने उसको ठीक भी कर लिया, पर रेकर ना हो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट कैन बी योर बिगेस्ट फेलियर एट वर्क। Biggest success at work, many things are, this is quite self-explanatory, but you need to find out how did you improve anything at work. Yes, be prepared for that type of a question. How do you manage people, how do you manage work, how do you time your day, what's your usual day at work, ठीक है। आपके अगर टीम में आपसे 10-12 साल बड़े लोग हैं, आप कैसे मैनेज करते हो। आपके टीम में कोई बहुत टेक्निकली साउंड पर्सन है, आप कैसे मैनेज करोगे। आपका इंजीनियरिंग या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और आपके अंदर कल को टीम में कोई IIT वाला आता है, तो आप उसको कैसे संभालोगे। प्रिपेयर करो इन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। Be prepared and start preparing on these questions. One more thing that generally is asked is a role play. So if you are planning for an HR or a marketing or a finance or a operation, be prepared for a real life case study. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि आप फलाना फलाना सेल्स रीजन के हेड हो और फलाना फलाना प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसको कैसे केटर करोगे, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन हैव अ वेरी सेपरेट वीडियो ऑन रोल प्ले एज वेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So this is something that you really need to prepare. If I have to summarize, yes, what are you checked for? आपने अभी तक लाइफ में जो भी किया है ना, कितना बढ़िया तरीके से किया है ये देखा जाता है. दूसरा, अगर आपके आंसर्स में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब मेरा जैसा वीडियो देख के या कहीं से 2-4 लोगों का सीख के पूछ पाछ के आपने आंसर तो नहीं दे रहे हो, कंसिस्टेंसी विल बी चेक्ड एंड दैट इज व्हाई काउंटर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. आर यू अ टीम प्लेयर और एन इंडिविजुअल पर्सन? वेरी सिंपल. डू यू अंडरस्टैंड बिजनेस? क्या आप सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट में मानते हो? मतलब एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मेरे को बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी, बट माई कंपनी कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ. कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब वो टेक्नोलॉजी का खर्चा ही मेरे कंपनी के 6 महीने का रेवेन्यू है. आई मे नॉट वांट टू इन्वेस्ट, राइट? सो सस्टेनेबल बिजनेस, आपके प्रोजेक्ट में क्या आप बिजनेस समझते हो? क्या आप लॉन्ग टर्म देखते हो कि शॉर्ट टर्म? डू यू हैव अ मायोपिक व्यू और नॉट? यू शुड नॉट हैव अ मायोपिक व्यू. यू शुड ऑलवेज लुक एट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर outcome of any event. That is what you have to see. Are you a good decision maker? Right? That is exactly what you are checked. Right? Decision maker is very, very, very important. Many people want to check on that. Now hold on. ये सब मैंने बात करी है वर्कएक्स वालों के लिए, but all those who have even done a little bit of internship, be prepared for similar questions from your internship as well. But what if you are a fresher and you do not have any internship या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर फ्रेशर्स, वर्कएक्स वाले भी रेडी रहे. मतलब आपका वर्कएक्स है तो आपने पढ़ाई तो की थी, सो आप भी ये क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है. फेवरेट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? सिंपल, go with 2 to 3 subjects where you can talk about very much in detail. Final year projects and trainings,
वाई अ करियर शिफ्ट स्पेशली फॉर इंजीनियर्स. अगर इंजीनियरिंग से फाइनेंस जाना है या मार्केटिंग जाना है तो क्यों जाना है. अगेन कनेक्टेड विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स. टॉक टू योर मेंटर्स, दे विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाई नॉट आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ वर्क एक्स, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. वर्क एक्स से बाद क्यों नहीं. ठीक है. ये बहुत ट्रिकी आंसर होता है. इस आंसर को एक्चुअली आपको कनेक्ट करना है अपने गोल्स के साथ. वेरी सिंपल. ठीक है. सो मेरे को याद है लास्ट ईयर वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज आस्क्ड इन IIM Indore, if I am not wrong, and she very well answered that, sir, why not now. ठीक है. और फिर उसने अपने करियर एस्पिरेशंस बताए, उसने उसके साथ कनेक्ट किया, एंड यस दे एब्सोल्युटली अप्रूव्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर. मतलब आज मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिली एज अ फ्रेशर आफ्टर स्कोरिंग मोर देन 99 परसेंटाइल, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव माई करियर प्लान, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट करियर प्लान डूइंग एन MBA हेल्प्स अ लॉट. ठीक है. सो ऐसा जरूरी नहीं कि वर्क एक्स के बाद ही MBA करना होता है. ठीक है. पोजीशंस ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फ्रेशर, आपने अभी तक कहीं तो कुछ कमिटी वगैरह में, कोई NGO वगैरह में किया हुआ है. सो यस, नो अबाउट इट. इवन इफ इट्स एन NGO, अगेन रिमेंबर ऑल द नंबर्स एंड एवरीथिंग, जो पिछली साइड में मैंने बोला था. अगेन फॉर यू ऑल्सो बिगेस्ट फेलियर एंड अचीवमेंट्स विल बी आस्क्ड. नाउ मेनी स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स होते हैं वो जनरली फेलियर में बात करते हैं अपने एकेडमिक्स की. मैं बोलूंगा इसके अलावा कुछ होगा. ट्राई टू फाइंड आउट, डिग डीप, टॉक टू पीपल, टॉक टू फैमिली एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. मतलब सर मेरे 10th स्टैंडर्ड में 75% मार्क्स आए थे, 60% मार्क्स आए थे, 55 आए थे. दैट प्रोबेबली कुड बी द लास्ट फेलियर. मतलब क्या आपने इससे बड़ा फेलियर लाइफ में देखा ही नहीं है. ठीक है. सो आपने फिर लाइफ में, मतलब फेलियर इज ऑलवेज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, एंड वी हैव नॉट सीन एनी बिगर फेलियर वेयर यू एक्चुअली थॉट के बॉस बैंड बज गई लाइफ की. ठीक है. अगर आपने वैसा वाला फेलियर नहीं देखा है, सो आपने लाइफ में अभी तक बहुत कुछ देखना बाकी है. ठीक है. तो मैं बोलूंगा थोड़ा अंदर घुसो, आप खुद के अंदर जाओ और फाइंड आउट करो, मिलेगा. ठीक है. अगेन हाउ डू यू मैनेज पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड. बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. व्हाट कुड बी अ प्रॉपर आंसर, अगेन बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड बेस्ड ऑन योर सम ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू वुड हैव मैनेज्ड पीपल हु आर elder to you. Again, whatever you have done, how well you have done in your acads, your anomalies, team player, same things you are also measured at. So आप समझ रहे हो दोनों स्लाइड्स में क्या सेम बात थी जिस पे आपको रेट किया जाता है, लेकिन द क्वेश्चंस दैट वेर आस्क्ड वर कंप्लीटली डिफरेंट. सो दो अलग अलग तरीकों से सवाल किया जाता है, लेकिन चीज एक ही आप में से निकाली जाती है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू. सेमी टेक्निकल की अगर बात करो तो अगेन ऑल द एक्स्ट्रा कोर्सेज, प्लीज 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 बी थरोली प्रिपेयर्ड अबाउट दैट. मतलब मैं नहीं चाहता कि अगर आप बोलते हो कि मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स किया हुआ है और मुझे कुछ पता ही नहीं है, डू नॉट लेट दैट हैपन. रेलेवेंट के बारे में मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका था. आप जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जिस कंट्री में काम कर रहे हो, सब कुछ रेलेवेंट हो जाता है. जिस सिटी में काम कर रहे हो रेलेवेंट हो जाता है. ठीक है. अगर आप नेवी आर्मी बैकग्राउंड से हो, अगर आप एक एजुकेशन वाले बैकग्राउंड से हो, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा. ठीक है. प्लीज बी प्रिपेयर्ड अबाउट रेलेवेंट करंट अफेयर्स एंड जेनरिक करंट अफेयर्स में तो मतलब बहुत सिंपल बोल दूं, लास्ट 2 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर our students and for those who are not my students, there is a lot of material already available over the internet. You can always read about these topics. ठीक है. एक सिंपल एनालिसिस है पेस्टल करके, उसको भी लेके आप पढ़ सकते हो. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड लीगल. सो रीड GK फ्रॉम ऑल दीज कॉर्नर्स एंड आई थिंक यू शुड बी डिसेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. HR इंटरव्यूज को थोड़ा डिटेल में बात करो तो व्हाई दिस कॉलेज, प्लीज 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 रीड अबाउट the courses that are there in the college, their pedagogy, the student committee, the student body, the student exchange program, students को कितनी वहाँ पे फ्रीडम मिलती है और कैसे पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे. प्लेसमेंट इज समथिंग दैट, सबसे पहले तो ये बता दो आपके दिमाग में भी प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. हाँ मैं समझता हूँ मेनी ऑफ द MBAs want to do मतलब मेनी ऑफ द MBA aspirants want to do an MBA for placements, but that should not be the most important criteria. मैं यही बता रहा हूँ, don't go by numbers, go by quality of a particular college. Numbers will follow. I'm telling you, numbers will follow. So talk about quality of a particular college, right? Why should you be selected and rejected? Again another question which talks about your strengths and weaknesses. Sir, ऐसा rejected में हम बोल सकते हैं कि these are the reasons that I should be rejected. So मैं शायद subtle वे में ये बोलना चाहता हूँ कि you can always talk like that. Sir, I'm not sure if you would be rejected because I don't consider myself competent enough to reject anybody, but if I understand the questions then yes I do have a few weaknesses. इतना बोल के मैंने मेरी weaknesses चालू कर दी. तो सबसे पहले बहुत humble होके मैंने बता दिया कि मेरी किसी को भी रिजेक्ट करने की औकात नहीं है.
सो मैं नहीं जानता कि ये पॉइंट पे मुझे रिजेक्ट किया जाएगा, तो मैं थोड़ा सेफ भी खेल गया कि प्लीज मेरी वीकनेसेस है पर इसमें मेरे को रिजेक्ट मत करना, ठीक है, पर ये आप ऐसा तो नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सटल वे में बोला, मैंने क्या बोला, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ डीम्ड और competent enough to reject somebody, but if I understand the question and yes I do have a few weaknesses, and then you can list down your weaknesses on which I am working and this is what I have done, ऐसे करके आप डेफिनेटली बात करो। प्लीज डू नॉट बी टंग टाइड व्हेन यू आर आस्क्ड सच हाउ शुड आई से ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पे जहां पे आपको लगता है कि बॉस इसका जवाब तो मैं कैसे दूं, इसका जवाब दूंगा तो मेरा पत्ता कट नहीं जाएगा। नहीं, मेनी अ टाइम्स ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, rather all the times honesty is definitely rewarded, of course if you understand you do not cross that foolishness wala border. Hobbies, special interest, I believe I've already talked about anything about you, right? Your name, your surname, मतलब मैं हमेशा बात करता हूँ एक पर्टिकुलर इसकी जहाँ पे one of my student couple of years back talked a lot about his surname, right? Was a very distinct surname. So आपको आपकी लेगेसी के बारे में पता, आपके lineage के बारे में पता होना चाहिए। If you ask me, I know my family's legacy सिंस द एरा ऑफ महाराणा प्रताप, ठीक है, अब मेरे को पहले से नहीं पता थी, बट जब मैं खुद के एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, मैंने घुसना चालू किया। आई स्पोक टू मेनी 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 रिलेटिव्स एंड देन कहीं से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके मुझे पता चला कि महाराणा प्रताप के टाइम से जो मेरे एंसेस्टर्स फोर फादर्स थे, जो राजस्थान से कैसे माइग्रेट होके गुजरात आए, गुजरात से कैसे कुछ लोग बॉम्बे गए, सो काफी थोड़ा बहुत हिस्ट्री मुझे पता चला, राइट? इट्स एब्सोल्युटली गुड टू नो अ लॉट अबाउट योर ओन। इट्स अबाउट बीइंग अवेयरनेस, सिंपल, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। आप कितने अलर्ट हो, कितने अवेयर अपने सराउंडिंग्स को लेके। नो अ लॉट अबाउट योर सिटी, अबाउट योर कॉलेज, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, लाइक आई सेड, राइट? चलिए, सम कॉमनली आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं थोड़ा फटाफट रैप अप करना चाहता हूँ। सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस 5 years 10 years गोल, ठीक है, वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज। मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, सर पीआई के लिए मतलब प्रिपेयर करूँ तो करूँ क्या? यही तो मैं बता रहा हूँ पूरे वीडियो में, ये सब के बारे में प्रिपेयर करो। अब अगर ये सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में बोलने जाता, सो मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 घंटे का मेरा वीडियो हो जाता, जो कि आप लोग नहीं देते। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने पहले एक आपको जिस्ट दे दी आज ये वीडियो में, अब इनमें से छोटे छोटे टॉपिक उठा के मैं छोटे छोटे वीडियोस डालना हूँ। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल so that you don't miss out on even of the smallest of the videos that we will be uploading. One thing that you want to change in life, very simple, आपका कोई तो पास्ट ऐसा कुछ तो होगा जो आप बदलना चाहते हो। इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, ठीक है। वन थिंग यू वांट टू चेंज इन योर सराउंडिंग, इन योर फैमिली, इन योर कॉलेज, इन द सिस्टम, कुछ भी। लीजर टाइम में क्या करते हो? अच्छा, इनअप्रोप्रिएट और पजल्स, गेस्टिमेट्स, गेस्टिमेट्स में भी आप चाहो तो मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। व्हाट आर गेस्टिमेट्स? मेरे को मेरे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स सोल्ड इन द सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। लेट मी टेल यू, दे डू नॉट वांट द आंसर, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बढ़िया काम किया, मैंने बोला सर डू आई हैव द प्रिविलेज टू आस्क फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, बहुत हम्बल होके, ह्यूमिलिटी आपको दिखानी है, यू गॉट टू बी हम्बल, ठीक है। सो क्या मेरे पास है 2 मिनट में मांग सकता हूँ? मैंने मांग लिए, मैंने वर्किंग करी और फिर मैंने उनको एक आंसर दिया। ऑफ कोर्स दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द आंसर, दे ओनली वांटेड टू नो ये नंबर तक आप कैसे पहुंचे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गेस्टिमेट इज। इफ यू वांट वी कैन हैव अ वेरी सेपरेट वीडियो ऑन दैट। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टू रीड एंड टू रीड। मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर ओवर, अगले 3 महीने क्या करोगे आप, ठीक है। जब तक आपके इंटरव्यूज आपके ड्रीम कॉलेज नहीं तक पहुंचते, आपको वही करना पड़ेगा। Read about some of the successful individuals, Steve Jobs, Richard Branson, Dr. Verghese Kurian, since most of you guys are from Gujarat, read about them. Jack Welch, people from operations, the Bansals, the Mittals, the Ambanis, Jack Ma, Tesla. मतलब यार इंडिया में कमी नहीं है। रीड अबाउट द स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप में ही आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। रितेश अग्रवाल हो गए, आपके कुणाल हो गए, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया, राइट। जोमैटो, स्विगी। Read about their stories, read about how they made and where they are, what they are done today. Read about big organizations, read about philosophy, read about business thoughts. I am at bullet number 3, ठीक है। Some of the books that I really want to recommend, मतलब मैं जानता हूँ आपके पास समय बहुत कम है, पर जितना कर सकते हो, इनका जिस्ट निकाल सकते हो तो वो पढ़ो। Freakonomics is a great book where you can use a lot of statistics. 7 P's. Read about BCG, read about Amazon leaderships. मतलब Amazon leadership fundamentals are the best, my personal favorite. कुछ नहीं तो आपने वहां से वर्ड्स उठा के भी उसके अलाइनमेंट में बात करोगे ना, यू विल एब्सोल्युटली कम अप एज अ ग्रेट लीडर एंड समबडी हु थिंक्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग बुक ऑन इंडिया व्हिच इज रिटन बाय श्री सी के प्रहलाद। द बुक्स टाइटल इज फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड,
read a lot about it. That's a very great book. That's a very strongly recommended. Apart from that, there are also some of the other books, जैसे आपके पर्पल का हो गए, टू बिग टू फेल हो गया, बहुत सारे बुक्स है. रीड अबाउट देम, कुछ तो पढ़ो इज व्हाट आई टेल यू. एज फार एज करंट फिनोमिना आर कंसर्न, तो कोविड फाइट हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, क्लाइमेट, लेफ्ट राइट, बहुत सारे, मतलब पिछले 2 साल में इतने सारे हैपनिंग हो गए ना. क्रूड ऑयल प्राइसेस गोइंग नेगेटिव, रीड अबाउट दिस. ठीक है, मैंने लिखा हुआ है लास्ट 6 months, बट आई टेल यू अगेन, जितना कर सकते हो उतना करो. अच्छा है, एडिटोरियल्स एंड लॉट्स ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द मटेरियल. क्या देखता है एक बी स्कूल आपके अंदर? फंडामेंटल स्किल्स, कम्युनिकेशन. अगेन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि गॉन आर द डेज वेयर यू वर रेटेड मेजरली ऑन कम्युनिकेशन. मतलब पहले ऐसे होता था, आज से 10-15 साल पहले, कि अगर आप बोलने में जबरदस्त हो ना, आप सिलेक्ट हो जाते थे, बट अभी नहीं है. ठीक है, हाँ, फॉर्चुनेटली / अनफॉर्चुनेटली कंटेंट इज चेक्ड, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज communication never go is eradicated completely. मतलब सबकॉन्शियस में तो रहेगा ही. ठीक है, the way I talk versus the way somebody else will talk will create a different impact on you. ठीक है, मतलब YouTube पे आपको हजारों लोग मिलते ही हैं, कुछ मेरे से बेटर होंगे, कुछ मेरे से नॉट बेटर होंगे. यही मैं आपको बता रहा हूं, आप कितना भी बढ़िया कंटेंट हो, प्रेजेंटेशन का थोड़ा तो फर्क पड़ता है. ठीक है, हाउ डू यू डू दैट? यू गो टू टॉक. स्विमिंग पे मैं 15 घंटे का लेक्चर लूं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे ना, आपको स्विमिंग नहीं आने वाली. सेम अप्लाइज टू कम्युनिकेशन. टॉक टू पीपल, टॉक टू द मिरर, यू राइट डाउन दीज आंसर्स एंड देन टॉक टू द मिरर. मतलब बहुत कॉमन है, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने कभी ना कभी लाइफ में किया होगा कॉन्फिडेंस लाने के लिए. आप भी ये करो. ठीक है, दे वांट टू चेक इफ यू आर अ गुड मैनेजर, डू यू मैनेज थिंग्स, हाउ वेल यू आर एबल टू यूज नंबर्स, करंट अफेयर्स, क्या आप सोचने वाले बंदे हो. लास्ट 2 points आर वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू यूज कॉमन सेंस एंड डू यू थिंक और नो. सो प्लीज डू नॉट बी दैट बड़बोला पर्सन हु, मतलब वो वाला पुलिस नहीं बनना है. ठीक है, मतलब पहले बोल दिया और बाद में सोचा, ऐसा अपने को नहीं करना है. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, योर अडेप्टेबिलिटी एंड योर रेडीनेस टू लर्न. लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेडीनेस टू लर्न इज डेफिनेटली चेक्ड. सम ऑफ द बेसिक डूज एंड डोंट्स इन अ पीआई. ड्रेस फॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट. सर मेरा तो ऑनलाइन है. ठीक है, सो यहाँ सूट, यहाँ शर्ट और फिर नीचे ऐसा शॉर्ट्स में आ तो चलेगा, आपका रिस्क. ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा. ड्रेस फॉर्मली तो ड्रेस फॉर्मली, वेरी सिंपल. ठीक है, अगर आप कोई फिजिकल इंटरव्यू में जाते हो कहीं पे, तो प्लीज अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग करना व्हेनेवर यू एंटर. इनफैक्ट इवन if you are on an online interview, please greet them, right? Make sure of the time. मतलब ऐसा ना हो कि आपने देखा 12:30 हुए ना, गुड आफ्टरनून. ठीक है यार, पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके बैठो क्या टाइम हो रहा है, और टॉक अकॉर्डिंगली, राइट? अगर आप कभी फिजिकल इंटरव्यू में, फिजिकल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो शेक हैंड को लेके एक थोड़ा होता है कि वेदर शुड यू शेक हैंड और नॉट. मतलब कोविड-19 चल रहा है, अब तो कोई नहीं करता, नमस्ते कर लो, बेस्ट है. ठीक है, अदरवाइज जनरली शेक हैंड का ऐसा होता है कि यू ऑफर व्हेन यू आर वेलकमिंग समबडी. तो अगर आप उसके कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वेलकम नहीं कर सकते, उनको करना चाहिए. ठीक है, सो या आई कॉन्टैक्ट एंड कीप स्माइलिंग, डोंट लाफ, बट यू गॉट टू बी पॉजिटिव. ठीक है, मतलब वैसे सड़ी सी शक्ल बना के मत बैठना. अगर आप फटी में हो तो दिखाना नहीं, बहुत सिंपल सी बात है. डोंट शो दैट इफ यू आर नर्वस. इट्स गुड टू बी नर्वस. वन ऑफ द इंटरव्यूज आई वाज आस्क्ड, आर यू नर्वस? आई सेड यस. ठीक है, व्हाई आर यू नर्वस? सर द इंटरव्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी. ऑफ कोर्स a little bit of nervousness is something that I can't avoid, right? Little bit. Again, I am very much wary of the choice of words that I am using. Please carry a copy of resume with you. Like I said, I am going to create a separate video on how to make a great resume. So वहाँ से कुछ tips उठा के make a resume for you. Listen to the interview questions. Please let them complete. ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको अपने बीच में कट कर दिया. बॉस, किसी को बोलते हुए कट करना मतलब ईगो को हर्ट करना. कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिकरे के ईगो को हर्ट नहीं करने का. Do not get into an argument with the panel by boss, please. Boss is always right. That is rule number 1. Rule number 2 is refer rule number 1. ठीक है, that doesn't mean that you will not put forward a point. Again, I'm telling you, sometimes they may also say और they may also check कि क्या आप कहीं पे झुकते हो, टूटते हो. So यहाँ पे थोड़ा एक conscious case wise call लेना पड़ेगा आपको कि अगर आपका पॉइंट वैलिड है, अगर आपका जस्टिफिकेशन वैलिड है, तो यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो अपना पॉइंट नहीं ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज से कि यस सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन, आई थिंक दैट इज समथिंग अ वेरी नाइस वे. आप ऐसा बोलना चाहिए कि यू हैव गिवन मी अ वेरी डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट्स व्हिच आई शुड थिंक अबाउट, करके भी आप छोड़ सकते हो. लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे टेररिज्म हो गया, या विमेन अब्यूज हो गया, या सम सोशल कॉजेज हो गए, जो नो है तो नो है. बट अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है तो यू गॉट टू एनालाइज एंड थिंक अकॉर्डिंगली. ठीक है,
लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी इंग्लिश वेरी वेल एंड ट्राई टू यूज जार्गन्स, ठीक है. मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप बात करते हो कि किसी कंपनी की इमेज खराब होती है वर्सेस इफ यू से दैट वी डू नॉट वांट टू डाइल्यूट द ब्रांड इक्विटी, द latter one makes a great impact, but provided you know what it actually means, right? Sir, I will compare the cost of 2 to 3 options that I have and then I will see what all benefits each one of them is giving. इसके बदले अगर मैं ऐसे बात करता हूँ that sir we had done cost benefit analysis for four options and option number 2 came up to be the best one. So cost benefit analysis is same as this you analyze the cost, you see what the profit is, but बात करने का तरीका भी बहुत फर्क पड़ता है. Last and the most important point that I want to tell you is that prepare, do not go extempo, ठीक है. You really need to prepare on all these points that we have discussed. अच्छा, don'ts की भी बात करूंगा मैं. never lie, never bluff, झूठ नहीं बोलना, पकड़े जाओगे, ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है कि they have a very amazing poker face, they have this ability of keeping a poker face. Do not bluff, ठीक है. You will surely get rejected. अगर पकड़े गए तो you are gone, ठीक है. So don't do that. Shake hands के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका. Do not argue, do not cook up a story, do not panic if you don't know the answer. This is very important. हाँ, नहीं पता, कोई बात नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे इंटरव्यू में 10 में से 8 सवाल में आपने बोल दिया नहीं पता, सर ने बोला था नहीं पता. ऐसा मत करो. अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा. अदरवाइज एक आध 2 आंसर में अगर आपको नहीं पता, so you can always say that yes sir I'm sorry but I don't know about it or I haven't researched about it or I haven't learned about it and I would really want to do that. So कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है. Don't appear nervous. It's fine to be nervous. Let me tell you, everybody is nervous, ठीक है. कुछ लोग बहुत बॉन्ड होते हैं. अगर आप फिजिकल इंटरव्यू जाओगे तो वहाँ तो आप एक दूसरे से मिलते भी हो, ठीक है. ऑनलाइन में शायद आप नर्वस रहोगे क्योंकि शायद आप अकेले हो और आपको पता ही नहीं सामने क्या चल रहा है. मैं बहुत सिंपल सी बात हूँ, सबकी फटी पड़ी, वेरी सिंपल, ठीक है. मतलब चाहे कोई बड़ा सा तोपची भी एक बार इंटरव्यू में बैठता है ना तो उसको डर तो लगता है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, राइट. द सीट दैट यू आर इन इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो डोंट वरी अ लॉट इफ यू आर नर्वस. जस्ट टेल योरसेल्फ ऑल इज वेल, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, ऑल इज वेल. मेक श्योर योर सेल फोन्स आर स्विच्ड ऑफ, नो साइलेंट, नथिंग डूइंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज यू डोंट वांट दैट टू हैपन. आप बात कर रहे हो और अचानक से पीछे से एकदम मतलब कोई भी आपकी वियर्ड सी रिंगटोन होगी और अचानक से बजना चालू हो जाएगा, ठीक है. अच्छा सर रिंगटोन तो नहीं पर साइलेंट में वाइब्रेट हुआ, सो ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे इधर झंझनाटी हो रही है, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा. डजंट लुक गुड, राइट. मतलब वो कुछ और सोचेंगे, आप कुछ और कर रहे हो. यू डोंट वांट दैट टू हैपन, ठीक है. एज फार एज ड्रेसिंग पार्ट इज कंसर्न मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट विमेन ओवर हियर. whatever you are dressed in, make sure you are comfortable, ठीक है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है that you need to have western formals, ब्लेजर ही पहनना है, स्कर्ट पहनना है, हिल्स पहनने जरूरी है. आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर गोइंग टू अ प्लेस, ठीक है. घर पे ही हो तो भी जरूरी नहीं है. यू शुड बी इन एन अटायर विच यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन, ठीक है. इंडिया में इंडियन फॉर्मल्स चलते हैं, ठीक है. बट द पॉइंट इज, एंड दिस अप्लाइज टू दिस थिंग अप्लाइज टू बोथ. द पॉइंट इज टू अगेन मेन एंड वुमेन बोथ, डोंट बी गॉडी. don't do a lot of makeup or don't do something which is too much, ठीक है. ऐसे बड़े बड़े झुमके कभी कभी लड़कियों के मैंने देखे हुए होते हैं कि वो ऐसे खन आवाज करते रहता है. दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है. ऑल्सो अगेन टॉकिंग टू द फीमेल्स ओवर हियर, मेक श्योर दैट योर हेयर आर अ लिटिल बिट टाइड अप सो दैट इंटरव्यू में घड़ी आपको ऐसा ना करना पड़े. कुछ लड़के मेरे जैसे भी होते हैं जिनको भी ऐसी आदत होती है. प्लीज डोंट, चालू इंटरव्यू में ये सब आपको नहीं करना है. कुछ भी हो जाए नहीं करना है, ठीक है. हाँ, कुछ लोगों को पेन के साथ खेलने की आदत होती है, मत करो, ठीक है. डोंट डू दैट. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. सम ऑफ द लास्ट वर्ड्स दैट आई हैव टू शेयर इज, लेट मी टेल यू गाइस, ओनली मतलब ये सेंटेंस को आप 2 तरीके से दे सकते हो. हाफ बैटल इज डन, ग्रेट. हाफ बैटल इज रिमेनिंग, ठीक है. वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाफ बैटल रिमेनिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग इज वेरी सिंपल कि अभी आपकी जो फाइट होगी ना वो आपके जैसे लोगों की होगी. मतलब अगर आपके 99 परसेंटाइल है ना तो आपके साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना बॉस उनके भी तो उतने ही तो है. कौन सा आपकी फाइट किसी 50 परसेंटाइल के साथ होने वाली है. अगर आपके 90 है तो बाजू वाले के भी 90 है. आजू बाजू में ही हो आप, ठीक है. अगर आप 80 पे हो तो अगेन यू आर इन दैट कॉलेज वेयर अदर्स आर ऑल्सो एट दैट परसेंटाइल रेंज. सो दैट मीन्स whatever you have done अभी तक that should not go wasted. That is the reason that I am telling you, prepare a lot, focus on next few months a lot. Focus is very important. मतलब don't plan a Goa trip अभी, very simple, ठीक है. You are competing with best minds. Most importantly I am telling you is believe in yourself and enjoy the process. बोल्ड में कैपिटल में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी बात हूँ, आज के तारीख में मुझे
ज़्यादा मेरे पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशंस याद है देन एनीथिंग एल्स. सेम थिंग व्हेन आई मीट स्टूडेंट्स ऑफ yesteryears, they always say कि सर GD में ऐसा हुआ था, PI में ऐसा हुआ था. So this is a process that you will remember definitely for the rest of your life. चाहे अच्छा या बुरा, याद आपको पक्का ये रहने वाला है. That is the reason I'm telling you, enjoy the process. ठीक है. Obsession is not bad. Be obsessed with whatever you are doing. For next 3 months, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, obsession के साथ पढ़ो. That is really very important. मतलब interview, group discussion, MBA, these are the only things that should be on your mind right now. Take ownership of your life. कोई आपको सजा के MBA का सीट नहीं देने वाला. आपको स्टीयरिंग हाथ में लेना पड़ेगा. लर्न, बी क्यूरियस, इंसिस्ट ऑन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स. मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, हाँ चलेगा, इतना तो हो गया ना, चलेगा, चलेगा शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी एनी मोर. मैंने एक बढ़िया एक स्टेटमेंट पढ़ा था. आई थिंक इट्स अ टाइटल ऑफ अ बुक. इट इज नॉट ओके टू बी ओके. प्लीज रिमेंबर दैट. डाइव डीप, बी ब्रेव. अगर आपको लगता है कि यार कभी जाते हो ऐसा इंटरव्यू में होता है कि यार मेरे 80 है, बाकी सब इसमें तो 90 वाले हैं, शेट, अरे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हाँ बढ़िया कर लोगे, मैं बहुत श्योर हूँ. सर मेरे 97 थे, बाकी सब 99, 99.8, 99.9. कभी कभी तो ऐसा होता था. लेट्स से अगर इस बार ऐसा आपको मौका मिलता है कि आप उस कॉलेज में जाते हो तो 99.9 वाले तो चौड़े में घूमते हैं, ठीक है. उनका काम होता है दूसरों को डराना. डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड बाय देम, राइट. Last thing that I really want to tell you is that something, a tagline that I love. I do not want to endorse the product, but I love this tagline. Guys, it's your life. Make it large. ठीक है? Yes. With that, I really want to wish you all the best. A couple of things that I want to tell you is, do mention in the comment section what specific title should be for our next video. मतलब कौन से टॉपिक पे आप मुझे ज़्यादा बात करना चाहते हो, ठीक है? Do like and subscribe our channel. This is IMS Gujarat YouTube channel से दिगंत पुरानी signing off. Thank you very much. Wish you all the best. Take care. Stay safe. Bye bye.